हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं ज्योग्राफी के चैप्टर यानी ज्योग्राफी जो भूगोल है, ये अत्यंत महत्वपूर्ण चैप्टर होने वाला है क्योंकि इसमें हम भूगोल के विषय में बहुत ही विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। चलिए देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। मोस्ट इम्पोर्टेंट हियर एग्रीकल्चर लैंड यूज। देयर इज इम्पोर्टेंट हियर एग्रीकल्चरल लैंड यूज हियर। The net disturbance area is a current flow and the land under tree crops and grow are included in agricultural land use. The agricultural land in India is a little more than 50% of the total geographical area in a country. This is the highest share of land in any country in the world. But due to the large size of population in India, per capita arable land is available only 0.17 hectare, which is a lower than there is a world average 0.24 hectare here. The per capita agricultural land in some select of countries is there much higher than India. In Australia, it is a 2.8 hectare. In Canada is a 1.35 and Brazil here 0.33 hectare. The lower per capita availability of land is an indicator of high pressure of population of a land resource. You know that there is an important here. The lower percent capital of ability of land is indicate the high pressure of population on land resources here. Since there is a little scope for the increasing of land under the plug, there is a way out of the field. There is growing population can be found in the increasing land productivity here. Over the period area is as more than once has been to the increasing, which is about 15%. If the same pieces of the land is more than once in the year, it is called to cropping intensity, which stand for the ratio between the gross cropped area and net sown area. The use of new technology, fertilizer, and good quality of seed and irrigation facility are necessary for increasing intensity of cropping. The so-called green revolution is also nothing but is a technological is a package which include HYV seeds and chemical fertilizer and artificial irrigation here. After the adaptation of green revolution by India in 1960 onward, the agricultural land use undergoes to significant changes. There is a most important question here. The green revolution adopted here in 1966 and there is a significant changes on the agriculture system. The use of HYV seeds and chemical fertilizer and artificial irrigation. There is an important point here. यहाँ पर जो हमारे समक्ष आया है अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक कृषि आधारित भूमि उपयोग। देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ पर कृषि आधारित भूमि उपयोग कहते हैं शुद्ध बोया गया क्षेत्र जो है चालू पड़ती भूमि एवं विविध पेड़ पौधों की फसल तथा उपवन वाले क्षेत्र कृषि भूमि उपयोग भी श्रेणी में आते हैं। भारत में कृषि योग्य भूमि का प्रतिशत कुल भूमि से 50% से कुछ अधिक ही है। तो आप समझ सकते हो कि भारत में कृषि योग्य भूमि का प्रतिशत जो है 50% से अधिक है। तो यहाँ पर बहुत ही अच्छी बात है, तभी तो भारत जो है कृषि प्रधान देश के रूप में जाना जाता है कि यहाँ पर जो है 50% से कुछ अधिक ही है। और यह विश्व में किसी देश का सर्वाधिक प्रतिशत है। इसमें कोई दो राय नहीं कि भारत में जो है कृषि के लिए सर्वाधिक प्रतिशत विश्व में भारत का ही है। परंतु भारत के अधिक जनसंख्या के कारण प्रति व्यक्ति कृषि योग्य भूमि की उपलब्धता केवल 0.117 हेक्टेयर है, जो विश्व की औसत उपलब्धता का जो है 0.24 हेक्टेयर प्रति व्यक्ति से भी बहुत कम है। वही अगर हम देखें ऑस्ट्रेलिया में प्रति व्यक्ति कृषि योग्य भूमि की उपलब्धता जो है 2.8 हेक्टेयर है। कनाडा में जो है 1.35 और ब्राज़ील में जो है 0.33 हेक्टेयर है। देखिए ये बात बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण है कि भारत में जितने प्रतिशत हमें मिला हुआ है भूमि का भाग, उसमें 50% भाग से अधिक जो है कृषि योग्य भूमि के लिए है। लेकिन अगर विश्व स्तर पर देखिए तो हमारे लिए जो है ये प्रतिशत की जो उपलब्धता है वो 0.17 है। और उसके बाद देखा जाए तो अगर हम दूसरे देशों की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया जो है 2.8 हेक्टेयर है, कनाडा में
35 और ब्राज़ील में 0.33 हेक्टेयर है। तो इस प्रति व्यक्ति भूमि उपलब्धता में जो है निम्नता उस देश की अथवा देश की जनसंख्या की भूमि पर दबाव को भी दर्शाता है, क्योंकि जोत वाली भूमि का क्षेत्रफल कभी बढ़ाया नहीं जा सकता। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर पॉइंट आया है। इसलिए बढ़ती हुई जनसंख्या के जो है भरण पोषण का एकमात्र उपाय भूमि की उत्पादकता को बढ़ाना है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि बढ़ती हुई जनसंख्या के जो है भरण पोषण का एकमात्र उपाय भूमि की जो उत्पादकता को जो है बढ़ाना है। अंततः कहते हैं पिछले कुछ वर्षों में कृषि योग्य भूमि के शुद्ध बोए जाने वाले क्षेत्रों में एक से अधिक बार फसल उगाए जा सकते हैं। तो देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण बातें हैं कि एक ही क्षेत्र में भूमि के शुद्ध बोए गए जाने वाले क्षेत्रों में एक से अधिक बार जो है फसल बोई भी जाती है, और इस दिशा में हुई अभिवृद्धि करीबन 15% है। यदि एक ही शुद्ध बोए जाने वाले क्षेत्र की भूमि के कुछ भागों में एक से अधिक बार फसल बोई जाती है तो इस क्रिया को फसल बुआई की गहनता कहते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि फसल बुआई की गहनता क्या होता है। तो मैं एक बार फिर से बता दूं, यदि एक ही शुद्ध बोए जाने वाले क्षेत्र की भूमि के कुछ भागों में एक से अधिक बार फसल बोई जाती है तो इस प्रक्रिया को फसल बुआई की गहनता कहते हैं, और यह एक अनुपात है जो शुद्ध बोया गया क्षेत्र तथा सकल बोया क्षेत्र के बीच होता है। और इस अनुपात को बढ़ाने के लिए नई कृषि तकनीक का उपयोग, उर्वरकों का उपयोग, अच्छी किस्म के बीजों की बुआई एवं उचित सिंचाई साधनों की व्यवस्था होनी जरूरी है। कहते हैं हरित क्रांति भी एक प्रकार के तकनीकी पैकेज है जिसमें HYV यानी उच्च उपयोगिता वाले बीजों को भी किस्म का जो है शामिल किया जाता है। इसमें रासायनिक उर्वरक और कुछ कृषि सामान्य साधनों की व्यवस्था भी शामिल होती है। तो आप समझ गए होंगे कि हरित क्रांति क्या होती है। हरित क्रांति अगर मैं साधारण शब्दों में बताऊं तो HY बीज और जो है रासायनिक उर्वरकता का उपयोग करके कृत्रिम जो है सिंचाई का साधन अपना के जो कृषि में जो उत्पादन की वृद्धि करते हैं उसे ही हरित क्रांति की नाम दिया गया है। अब यहाँ पर देखा जाए तो UPSC एग्ज़ाम के रिगार्डिंग जो क्वेश्चन बन गया है बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण कि भारत ने जो है हरित क्रांति की पैकेज कब जो है लागू हुआ था। तो देखा जाए तो 1966 में जो है लागू किए गए हरित क्रांति के पैकेज भारत में कृषि व्यवसाय में लगातार उत्तरी वृद्धि लाया गया, यानी 1966 में जो है इसका उपयोग किया गया, जो कि काफ़ी समय काल महत्वपूर्ण था। और इसे सीमित कृषि योग्य भूमि में शुद्ध बोए गए क्षेत्र में फसल की जो है आवृत्ति बढ़ी है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर बात को दर्शाया गया है। The next question here, types of farming. There is the most important, the next topic and question here, types of farming here, the important point. The types of farming, the basis for the classification of different types of agriculture in India are rainfall, irrigation facility and purpose of production and ownership and size of holding and technology used. On the basis of this factor, a number of farmings can be identified. The main types of farming in India are here. The first here, dry farming. There is the most important here, dry farming. This type of farming is practiced in the area where is the amount of annual rainfall is generally less than 80 centimeters. In such a region, their farmers are generally dependent upon to the rainfall. Here the moisture contained in the soil is less, hence only one crop can be grown in a year. The mills like jowar, bajra, ragi, pulses and etc. are important crops growing under these types of farming. There is the most important state here, Rajasthan, Maharashtra, part of Madhya Pradesh, Southern Haryana, part of Gujarat and Karnataka fall under this category of farming. In such an area, farmer adopt to the subsidies is activities such as a dairy, cattle farming to supplement there is a marriage from income. There is the most important here, dry farming. The next here, wet farming. Wet farming, this types of farming is practiced in the area of alluvial soils where is the annual average rainfall in more than 200 centimeter here. And more than one crops are growing in a year because enough amount of moisture in the soil is available. The rice and jutes are there is a main crop of this type of farming. The West Bengal, Assam, Nagaland,
Meghalaya, Tripura, Manipur, Mizoram and Malabar is a coastal fall under this category of farming as a wet farming area. The next year, irrigated farming. Irrigated farming here is important. This type of farming is a precise is in the area where is average rainfall is between 80 to 200 centimeter, which is insufficient from contain crops. This system of farming can be practiced only in those areas where availability of water from underground or surface water body like a river, tanks and lakes is sufficient throughout the year. The other condition for this farming is ability of level to the agricultural land. The main area where much farming is practiced are Punjab, Haryana, Uttar Pradesh is the north western Tamil Nadu and the deltas of peninsular rivers here. The other important pocket of agricultural farming is found in the Deccan Plateaus region, particularly in Maharashtra, Karnataka and Andhra Pradesh here. The wheat, rice and sugarcane are important crop of this farming. You know that there is the most important here. There is the particularly in the Maharashtra, Karnataka, Andhra Pradesh farming, irrigation farming, and there is the main crops here. Wheat, rice, and sugarcane is an important crop here. The next here, subsistence farming. Subsistence farming is the most important here. This types of farming is a practiced is a primarily to the fulfill self requirement of the people of the area. The main objective of this farming is they provide to the substance to be a large number of people of a given area. Size of holding in is a small use of annual laborers and simple farming implements are common feature of this type of farming. Substantial agriculture is a practiced in a part of Chhattisgarh, Uttarakhand, Jharkhand and the hill area of the country. There is a most important farming here. The next here, shifting cultivation. There is a most important here, a shifting cultivation here. In this type of cultivation, land is clear by cutting and burning of the forest to the rising of crop. There is an important here, the cutting and burnings of the forest arising of crop. The crops are grown for a few years is a 2 to 3 year. As a fertility of land, a decline of farmers move to new areas. They clear the forest and the growing to crops there for the next few years. This farming is a practiced in a some pocket of the hill area northeast and is a some travels belt of Orissa. Chhattisgarh and Andhra Pradesh in a northeast such as types of cultivation is known as a zooming. There is zoom krishi. There is an important point here, zooming. And in shifting is a cultivation here. The next here, terrace cultivation. Terrace cultivation is important here. It is a practiced in a hilly area. The farmer this is a reasons as the curbs outer terraces on the hill slopes. Is a conserve is a soil and water to the rice is a crops. In India, this type of cultivation is a practiced on the slope of Himalayas and hill of the peninsular region. Due to pressure of population and terrace cultivation in the beginning adopted in the northern eastern state of India and where shifting agriculture was practiced earlier. There is an important here and next here. Plantation agriculture. There is the most important here. Plantation agriculture is useful here. Well organized and managed cultivation of crop, particularly is a single one on a large scale, is called plantation agriculture here. It requires large investment on the latest technology and proper management. Tea, coffee and rubber are example of plantation agriculture here, and this agriculture is a precise in Assam, West Bengal and the slope of Nilgiri hill. The next year, commercial farming. Commercial farming is important here. Under this farming, their farmer raise a crop mainly for the market. Under this system, generally those crops are growing which are used as raw materials for
industries of cultivation is the sugar cane in Uttar Pradesh and Maharashtra. Cotton is the Gujarat, Maharashtra and Punjab, and jute is the West Bengal are some of the example of this farming. The next year, contract farming. Contract farming is important here. It is a view as an important tool to increase a private is a corporate involvement in their agro processing. In this system, is a company is engaged in a processing or marketing of the agriculture product entered into the contact with the farmers. They provide their farmers is necessary to facility and buy or back to the product with a rate specified in advance. The Field Fresh Company, a multinational, has 1,000-acre land under the horticulture in Punjab, and Pepsi and McDonald have to started to contact to cultivation of shortcut fruits and the latest respect there is a Balapurs and ITC is a provide to farmer with a fast-growing clone and varieties of trees that are mature in just 4 years and by the output. Such types of their farming is said to be getting popular among to the farmers, especially in Punjab. And however, some scholars fear that is a shift of the land from a food crop under this contact farming on a scale is likely to be result in a food security and especially for a lower income group. The next year, eco farming or organic farming. That is important here. Eco farming and organic farming. This farming avoid their use of synthetic fertilizer and pesticide, growing a regulator and the livestock feed or additives. These types of farming rely on their crops rotation, crop reduce, animal manure of farms are organic based and biological pest control to the maintain soil productivity. A few farmers for Rajasthan, Andhra Pradesh, Madhya Pradesh, Pondicherry, Punjab and adopting these types of agriculture here. This is important. यहाँ पर जो हमारे समक्ष आया है अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक कृषि के प्रकार। देखिए कृषि के प्रकार के विषय में जानना काफ़ी दिलचस्प रहेगा। कृषि के प्रकार क्या है? कहते हैं भारत में विभिन्न कृषि प्रकार के अपनाने का मुख्य आधार प्रमुख रूप से वर्षा सिंचाई व्यवस्था ही है। यानी भारत में विभिन्न कृषि प्रकारों को अपनाने का प्रमुख आधार जो है वर्षा को ही माना गया है और इससे सिंचाई व्यवस्था एवं उत्पादन का उद्देश्य कृषि जोत और भूमि का कार्य एवं स्वामित्व एवं कृषि तकनीकी विधियों का प्रयोग इत्यादि होता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है और इन्हीं कारक तत्वों के आधार पर जो है भारत में खेती करने के विभिन्न प्रकार एवं विधियों को पहचानी गई है। अब यही प्रमुख जो है जो विधियां अपनाई गई है उसके बारे में हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे कि भारत में कृषि के प्रमुख प्रकार कौन कौन से हैं। चलिए देखते हैं पहला प्रकार क्या है। अगर देखें पहले प्रकार तो यहाँ शुष्क कृषि है। शुष्क कृषि का अर्थ यहाँ पर क्या होता है तो देखिए कहते हैं इस प्रकार की कृषि का प्रचलन उन क्षेत्रों में है जहाँ वार्षिक वर्षा जो है 80 सेंटीमीटर से भी कम होती है, तभी जो है इसे शुष्क कृषि के नाम से जाना जाता है। जहाँ क्योंकि यहाँ पर जो वर्षा का पैटर्न है वो 80 सेंटीमीटर से भी कम होता है। तो समझ सकते हो कि शुष्क इसीलिए कहा गया है क्योंकि ये क्षेत्र जो है मैक्सिमम टाइम सूखा ही रहता है और इन क्षेत्रों में किसान सामान्य वर्षा पर ही निर्भर रहते हैं। कहते हैं मिट्टी में नमी की कमी रहती ही रहती है, यानी देखा जाए तो मिट्टी में नमी नहीं होती है, तो बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम आ जाती है इन कृषि के लिए क्योंकि ये तो आपको पता है शुष्क कृषि है तो इसका मतलब जो है मिट्टी में नमी की मात्रा बहुत कम ही रहेगी। इसलिए वर्षा में केवल एक ही फसल उगाई जा सकती है और इस प्रकार कृषि के अंतर्गत अनाज जैसे रागी तथा दालों की फसल मुख्य है। कहते हैं अगर क्षेत्र की बात करें तो राजस्थान गुजरात के मुख्य भाग, महाराष्ट्र मध्य प्रदेश के कुछ भाग और दक्षिण हरियाणा कर्नाटक में इस प्रकार की खेती की जाती है क्योंकि यहाँ पर जो है रेन का जो पैटर्न है बहुत ही कम है। यहाँ पर जो है 80 से भी कम रेन की जो है सेंटीमीटर नापा गया है और इन सभी क्षेत्रों में खेती करने वाले कृषक जो है सहायक क्रियाकलापों जैसे दूध व्यवसाय पशुपालन अपनाते हैं ताकि उनके कुछ आमदनी का जो है सहायक साधन मिल सके। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर बात को दर्शाया गया है। उसके पश्चात है आर्द्र कृषि। देखिए आर्द्र कृषि का अर्थ क्या है।
इस तरीके की खेती उन इलाकों में होती है जहाँ की भूमि जलोढ़ मृदा से बनी हो तथा वार्षिक औसत वर्षा जो है 200 सेंटीमीटर से भी अधिक होती हो। यहाँ साल में एक से अधिक फसल उगाई जाती है क्योंकि मिट्टी में पर्याप्त आर्द्रता अधिकांश समय तक बनी ही रहती है। धान और जूट फसलें इस प्रकार की कृषि में प्रमुखता से बोई जाती है। कहते हैं पश्चिम बंगाल, असम, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम तथा मलयावार तट में ऐसी ही कृषि काफ़ी हद तक प्रचलित है। तो आर्द्र कृषि तो समझ गए होंगे कि जहाँ पर वर्षा 200 सेंटीमीटर के से अधिक होती है, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पर 200 सेंटीमीटर की बात की गई है तो समझ लीजिए कि 200 से बहुत काफ़ी ऊपर है। तभी तो धान, क्योंकि धान के लिए अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है, जूट के फसल ठीक है प्रमुख होते हैं यहाँ पर। तभी तो इसको पश्चिम बंगाल, असम, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम और मलयावार जैसे देशों जो राज्यों के नाम यहाँ पर बताया गया है, क्योंकि इन राज्यों में जो है अधिक वर्षा जो है पैटर्न के साथ नापी गई है। उसके पश्चात है संचित कृषि। देखिए संचित कृषि क्या होती है। इस प्रकार की कृषि उन क्षेत्रों में सामान्य प्रचलित है जहाँ की औसत वार्षिक वर्षा जो है 80 से 20 सेंटीमीटर के बीच में होता है। यानी समझ सकते हो कि यहाँ पर बरसात की जो मात्रा है बहुत ही कम होती है, जो सामान्य किस्म की फसलों के लिए अपर्याप्त है। और इस प्रकार की कृषि केवल उन्हीं क्षेत्रों में अपनाई जाती है जहाँ सिंचाई के लिए पानी धरातल या भूमिगत जल स्रोत जैसे नदी, तालाब, झील तथा साल भर उपलब्ध होता है। और इस खेती के लिए अन्य दशाएं जो है समतल कृषि भूमि की उपलब्धता होना है। वो प्रमुख क्षेत्र जहाँ इस प्रकार की कृषि पद्धति का प्रचलन है वो पंजाब है, हरियाणा है, पश्चिम उत्तर प्रदेश है, उत्तर पश्चिमी तमिलनाडु के क्षेत्र हैं तथा प्रायद्वीपीय देश के जो है डेल्टा क्षेत्र भी आते हैं। और अन्य जो है महत्वपूर्ण क्षेत्र दक्षिण पठार भाग विशेषकर महाराष्ट्र, कर्नाटक एवं आंध्र प्रदेश हैं, जिसमें गेहूं, धान तथा गन्ना इस कृषि के प्रमुख फसलों के रूप में देखा जा सकता है। तो संचालित कृषि में एक बात आपको नोट करने वाली बात है कि इसमें जो है 80 से 20 सेंटीमीटर के बीच वर्षा होती है, और यहाँ मुख्य फसल गेहूं, धान और गन्ना इस कृषि के प्रमुख फसल है। और ये जो है पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और उत्तर पश्चिमी प्रदेशों के क्षेत्रों में ये पाए जाते हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात था जिसके हमने यहाँ पर बात किया। आगे और महत्वपूर्ण है। उसके पश्चात आता है जीवन निर्वाह कृषि। देखिए इस प्रकार की कृषि स्थानीय खेतिहर लोगों के जीवन निर्वाह की आवश्यकताओं को पूर्ति के लिए अपनाई जाती है। यानी इसमें व्यापार नहीं की जाती है, जीवन निर्वाह यानी जीवन को चलाने के लिए कृषि की जाती है। यानी लोग जो कृषि करते हैं उसको अपने भोजन में ही प्रयोग कर लेते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य किसी दिए गए क्षेत्र में अधिक से अधिक लोगों के जीवन निर्वाह से ही होता है। और इस प्रकार कृषि की प्रमुख विशेषता में जोत वाली भूमि का छोटा आकार होना होता है, क्योंकि ये जो जोत होती है बहुत छोटा होता है। क्योंकि कृषि जो होती है किले में किले किया जाता है, लेकिन यहाँ पर वो किला नहीं होता है, हेक्टेयर नहीं होता है। यहाँ पर छोटे से भूमि होता है जहाँ पर जो है अपने जीवन निर्वाह के लिए सामान्य रूप से कृषि की जाती है। कहते हैं अगर देखा जाए तो खेतिहर मजदूर तथा बहुत सस्ते एवं साधारण कृषि औजार का यहाँ उपयोग होता है, क्योंकि इसमें छोटा सा जोत होने के कारण जो है बड़े बड़े जो है औजारों का उपयोग करना संभव नहीं होता है। क्योंकि जीवन निर्वाह कृषि का प्रचलन छत्तीसगढ़ राज्य के अधिकांश भागों में देखने को मिला है, और झारखंड जो है, उत्तराखंड, झारखंड इन देशों में जो है सभी पहाड़ी क्षेत्र में ऐसे ही कृषि की जाती है जहाँ पर जीवन निर्वाह कृषि का नाम दिया गया है। उसके पश्चात है स्थानांतरित कृषि, यानी इसको शिफ्टिंग एग्रीकल्चर भी हम कहते हैं। कहते हैं इस प्रकार कृषि में फसलों को उगाने के लिए पहले जो है वन्य भूभाग को काट छाँट कर जंगली पेड़ पौधों को जलाकर साफ किया जाता है, और जो है फसलों को 2 से 3 वर्ष तक एक जगह की ज़मीन पर उगाया जाता है। जब ज़मीन की जो है उर्वरकता शक्ति कम होने लगती है तो कृषक नई जगह को चले जाते हैं और पुण्य वनों को साफ करके अगले कुछ वर्षों तक फसल उगाने लगते हैं। इस प्रकार खेती उत्तर जो है पूर्वी राज्य के पहाड़ी क्षेत्र और उड़ीसा के आदिवासी क्षेत्र और छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश राज्य के क्षेत्र में की जाती है। और इस कृषि के उत्तर पूर्व में से झूमिंग कृषि के नाम से भी जाना जाता है, झूम कृषि के नाम से भी जाना जाता है। तो स्थानांतरित कृषि के बारे में समझ गए होंगे कि इसमें जो होता है जंगलों को साफ करके किसान जो है कुछ सालों के लिए इस पर कृषि करते हैं, लेकिन जैसे इसकी फर्टिलिटी क्षमता यानी उर्वरक की क्षमता खत्म हो जाती है
वो इस जगह को छोड़ के दूसरे क्षेत्र में चले जाते हैं और वहाँ पर इसी तरह तरह की पद्धति को अपनाते हैं। तो ये जो है स्थानांतरित कृषि बहुत ही बेकार कृषि होती है, क्योंकि इससे जो होता है वनों का तो नाश हो जाता है और फिर वहाँ पर वेजिटेशन का उगना संभव ही नहीं रहता। तो इसी को जो है स्थानांतरित कृषि को जो है कोई भी जो है सलाह नहीं देता और इसको रोक भी लगाई गई है। उसके पश्चात है सीढ़ीदार कृषि। देखिए सीढ़ीदार कृषि इसका जो प्रचलन पहाड़ी क्षेत्रों में ही हुआ है। किसान इन पहाड़ी क्षेत्रों की ढलानों में ऊबड़ खाबड़ भूमि को उसके ढाल की दिशा में काट कर सीढ़ीनुमा आकृति में तैयार करते हैं, ताकि भूमि के जो है ऊपरी मृदा परत तथा उसमें जल का संरक्षण हो सके। सीढ़ीदार कृषि का प्रचलन भारत में हिमालय पर्वत के ढलानों तथा प्रायद्वीपीय पहाड़ी ढलानों पर है। जनसंख्या वृद्धि के दबाव के फलस्वरूप इन कृषि को भारत के उत्तर पूर्वी राज्य के कृषक आज भी अपनाते हैं। वह पहले से ही स्थानांतरित कृषि प्रचलित है, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है सीढ़ीदार कृषि। और ये पहाड़ी क्षेत्र में मुख्य तौर पर की जाती है, क्योंकि यहाँ पर सीढ़ीदार कृषि अगर नहीं की जाएगी तो पानी की जो पैटर्न होगी वो ख़त्म हो जाएगी। सीढ़ीदार कृषि करने से एक होता है कि पानी की भी बचत यहाँ पर होती है। उसके पश्चात है रोपण कृषि। देखिए रोपण कृषि जो है सुव्यवस्थित प्रबंधन एवं प्रवर्धित सुविधाओं से युक्त कृषि, किसी एक फसल के बड़े पैमानों पर लगाया जाता है तो उसे जो है रोपण कृषि कहते हैं। इसे बड़े पैमानों पर निवेश और नवीन तकनीकों का प्रबंधन की जरूरत होती है। चाय, कॉफ़ी तथा रबर जो रोपण कृषि के उदाहरण है, और इस कृषि का प्रचलन जो है असम, पश्चिम बंगाल एवं नीलगिरी पहाड़ी क्षेत्रों में की जाती है। तो रोपण कृषि जो है मुख्य तौर पर चाय, कॉफ़ी, रबर रोपण कृषि के उदाहरण है, और इसका जो है क्षेत्र जो है असम, पश्चिम बंगाल और जो है नीलगिरी के पहाड़ी क्षेत्र हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण कृषि के रूप में है रोपण कृषि। उसके पश्चात आता है वाणिज्यिक कृषि। इस प्रकार की कृषि में कृषक जो है फसलों का उत्पादन मुख्यतः बाजार के उद्देश्य से करते हैं, यानी बाजार को जो है मुख्य रख के कृषि की जाती है। और इस कृषि में फसल उगाई जाती है जिनका उपयोग कच्चे माल के रूप में विभिन्न उद्योगों में होता है। कहते हैं उत्तर प्रदेश तथा महाराष्ट्र में गन्ने का उत्पादन, गुजरात, महाराष्ट्र तथा पंजाब में कपास और पश्चिम बंगाल में पटसन इस कृषि के मुख्य उदाहरण है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि पटसन जो है कृषि महत्वपूर्ण होती है, और ये गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब में कपास और पश्चिम बंगाल में पटसन की कृषि की जाती है। तो महत्वपूर्ण बात है यहाँ। उसके पश्चात हमारे समक्ष आया है अनुबंध या संविदा कृषि। देखिए अनुबंध या संविदा कृषि क्या होती है। यह जो है निजी कंपनियों के कुछ जो है कृषि जो है प्रक्रियाओं में शामिल करता है, और इस व्यवस्था में निजी कंपनियां जो है कृषि उपज की विपणनता तथा संसाधित करने से पहले ही अपरोक्ष रूप में संलग्न रहती है तथा वह स्थानीय कृषकों का संपर्क करके उनसे अनुबंध करते हैं कि कृषि की फसलों के उत्पादन संबंधी सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे तथा कृषि उत्पादन की उपज की कृषक उन कंपनियों को जिनके साथ अनुबंध हुए थे बेचेंगे। यानी पहले ही कृषि को खरीद लेना अनुबंध या संबंधित कृषि कहलाता है। विक्रय की दर पहले ही तय कर ली जाती है। और एक बहुराष्ट्रीय दीप फील्ड प्रेस कंपनी ने पंजाब में 1000 एकड़ भूमि आधुनिक कृषि के रूप में खरीदा था। तो देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। कहते हैं ये कृषि को अगर आप जर्नली भाषा में समझना चाहोगे तो इतना याद रखना कि ये कृषि के जो फसल का जो कीमत होता है वो पहले ही तय कर दी जाती है, और इस कृषि को उगाया जाता है, फिर जो जाके उसको जो है यूज़ की जाती है। कहते हैं अगर किसानों का अनुबंध किया जाए तो काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है। इसी प्रकार के पेप्सी, मैकडॉनल्ड कंपनियां भी जो है अनुबंध कृषि में जो है परामर्श है। कहते हैं नींबू एवं ऐसे अन्य रसदार संतरे जो है मौसमी इत्यादि जो है लगाने में संलग्न होते हैं। तो ये सारे फसल इसी के अंतर्गत आता है। कहते हैं बॉलीवुड एवं ITC कृषक के सिर बढ़ने वाले पेड़ों को विभिन्न विशेष प्रकार के कृंतक बीज देने का जिम्मा लेते हैं जो मात्र 4 वर्षों में बड़े हो जाते हैं। यानी 4 वर्ष में जो है इसकी मात्रा काफ़ी बड़े हो जाते हैं, और इनके उत्पादनों को जो है कृषक कंपनियों को ही बेच देते हैं। इस प्रकार की संविदा कृषि जो है आजकल बहुत ही लोकप्रिय हो रही है तथा जो खासकर पंजाब के कृषक इससे बहुत ही लाभान्वित हुए हैं। यानी पंजाब में इसका जो है काफ़ी जो है लाभ देखने को मिला है। कहते हैं हालांकि कुछ विद्वानों ने चिंता भी व्यक्त किया है कि अधिक लाभ पाने के लालच में जो है कृषकों का बड़े पैमानों में पेड़ पौधे उगाने से जो ज़मीन की काफ़ी बड़ी जो है जोत का कंपनियों के साथ अनुबंध हो जाएगा, और यह खाद्य फसलों की पैदावार को प्रभावित कर इससे जो है विभिन्न आय वर्ग की जनता के बीच खाद्य पदार्थ की आपूर्ति में असुरक्षा पैदा कर सकती है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है यहाँ पर।
अगर अगले पॉइंट की बात करें तो कहते हैं पारिस्थितिकीय कृषि या जैव कृषि। इस प्रकार कृषि में जो है संश्लिष्ट खाद या कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग कृषि उपज के लिए नहीं किया जाता है, और इस प्रकार की कृषि जो है फसल चक्रण, फसल अवशेषों और पशु खाद तथा अन्य कंपोस्ट, जैव खादों एवं जैविक दवाई इत्यादि के उपयोग पर आधारित होता है। राजस्थान, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब और पुडुचेरी कुछ कृषकों द्वारा इस प्रणाली को अपनाया जा भी रहा है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर जो है हम हर एक कृषि पद्धतियों के विषय में विस्तार पूर्वक चर्चा की और हर क्षेत्र के बारे में भी जाना। ये टॉपिक कई मानने में हर एक बच्चों के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे वो 9th क्लास में पढ़ते हो, 10th में हो, +2 में, सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अगर ये आपको अच्छे से टॉपिक समझ में आया है, अगर आप त्रिपाण स्टडी सेंटर को हेल्प करना चाहते हो तो आपको त्रिपाण सेंटर को हेल्प करने के लिए सिर्फ इतना करना है कि लिंक को यूट्यूब से कॉपी करना है और व्हाट्सएप स्टेटस पर लगा देना है। जब आप यूट्यूब पर देखते हो इस वीडियो को तो वहाँ पर शेयर का भी बटन होता है, तो उसको ज़रूर दबाइए और शेयर ज़रूर कीजिए, जिससे आप त्रिपाण स्टडी सेंटर का हेल्प कर सकोगे। ठीक है, अगर पहली बार वीडियो देख रहे थे तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने मोबाइल में अवश्य सेव कीजिए, क्योंकि अगर बाद में कोई टॉपिक देखना चाहोगे त्रिपाण स्टडी सेंटर का, यूट्यूब पर रिसर्च करने पर कहीं भी आपको नज़र नहीं आएगा। तो इससे अच्छा है कि अगर सब्सक्राइब करके रखते हो तो आपको जो है मोबाइल में ये चैनल सेव हो जाता है। ठीक है, दूसरी बात ये भी रहती है कि कोई वीडियो देखना है तो यहाँ वीडियो के ऑप्शन में आप सारे वीडियो देख सकते हो। साथ में अगर आप वीडियो जो है क्लास वाइज देखना चाहते हो, टॉपिक वाइज देखना चाहते हो, तो इसका भी प्रावधान किया गया है। आप प्ले लिस्ट में जाके जो है सभी टॉपिक को जो है क्लास वाइज देख सकते हो, जो कि काफ़ी आपके लिए सुविधाजनक है।